Hello students, I welcome you again in Sanskaram group of school. Today we discuss chapter number 17 and the name of this chapter is Understanding Shapes to Quadrilaters. In this chapter we discuss about quadrilater. Quadrilater बेटा हमने पहले पढ़ा था, क्या कहते हैं? Closed polygon made up of 4 line segment. Now in this chapter we discuss type of quadrilater. First type आते हैं बेटा ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम किसे कहेंगे? A quadrilater having exactly only one pair of parallel sides is called quadrilater. In this quadrilater when non-parallel sides are equal, जब इसमें non-parallel sides equal हो जाएंगी then we say this is isosceles trapezium. Now next type is a parallelogram. Parallelogram is a quadrilater in which both pair of opposite sides are parallel. It means in parallelogram opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite angles are equal and diagonals bisect each other. Okay. Now next one is rhombus. Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. In rhombus diagonals bisect each other at 90 degree. Next one is rectangle. All of you know about rectangle. A parallelogram in which all angles are right angle. In rectangle diagonals are also equal. Square is the rectangle in which all sides are equal, all angles are equal, diagonals bisect each other. Then last type is kite in which two adjacent sides are equal, this one and this one, so this is called kite. So properties हैं बेटा जो तक पहले भी कर दी. पैरेललोग्राम, opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other. Same in rhombus, same properties हैं. So let us start exercise 17.1 with question number 1. Question number 1 is in the given figure ABCD complete the following statement. AD in the given parallelogram ABDC, ये पैरेललोग्राम है तो AD बेटा मिस प्रिंट कर दिया, C यहाँ पे आएगा और D आपका यहाँ होगा. देन ABCD, AD इक्वल होगा ये फिगर ही पैरेललोग्राम की नहीं है बच्चे, पैरेललोग्राम की फिगर से ऐसे बनेगी ABCD. AD इक्वल हो जाएगा BC के DCB इक्वल आ जाएगा एंगल DAB के OC, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो OC इक्वल हो जाएगा OA DAB प्लस CDA, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. Now let us start with question number 2. In question number 2 you have to find the values of remaining angles. Now parallelogram है, opposite angles are equal, so y equal to 100 दिया आ जाएगा. Sum of adjacent angle in parallelogram 180 डिग्री है तो ये 80 बन जाएगा बेटा. सेम z is also 80. In the next question this one is 50, so this one is 130 because in parallelogram sum of adjacent angle is 180 degree, so x is also 130. Now this is exterior angle, this is 50, so this one is 130. Otherwise y and z are alternative interior angle. Now here PNM right angle triangle है, ये 90 ये 30 तो z कितना आ जाएगा 60 डिग्री. x हो जाएगा 30 के इक्वल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. y इक्वल हो जाएगा 60 के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट वन बेटा दिस वन 90 तो x इज ऑल्सो 90, वर्टिकल अपोजिट एंगल y इज ऑल्सो 60 डिग्री, y 60 है तो z भी कितना आ जाएगा 60, अपोजिट अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. नाउ हेयर z इक्वल टू 80 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, y इक्वल टू 80 अपोजिट एंगल भी कह सकते हैं और पैरेललोग्राम अल्टरनेटिव इंटीरियर भी कह सकते हैं. x इक्वल टू 100 सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम. नाउ लास्ट पार्ट 112, this one 40. So first of all y is 112.
y112 आ गया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब x निकालेंगे, इन दोनों का सम हो गया 152, 180 माइनस 152 करेंगे तो 28, सो z इज ऑल्सो 28 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इन पैरेललोग्राम। आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम पॉसिबल हैं, यस एंड नो। दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट इन दिस अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। दिस इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। This is not a parallelogram because in parallelogram diagonal bisect each other. 5 is not equal to 6 and 4 is not equal to 3. So this is also not a parallelogram. Now question number 4. Question number 4 is HOP is a parallelogram. Find each measure of x and y. आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. This is 70. So this one 110 by linear pair. So x is also 110 by linear pair. Opposite angles are equal. So this one angle H equal to 70 because corresponding angles are equal. ये 70 है, ये 40, तो ये कितना आ गया बेटा 30 and y is also 40 alternative interior angle. Now question number 5. In question number 5 you have to find the value of x and y. Opposite sides are equal, so 3y equal to 26, 3y इक्वल टू 27 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 9। 3x इज इक्वल टू 18 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। फ्रॉम हेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो y माइनस 7 इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू बेटा 13 आ गई। x माइनस 13 इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट, दिस इज फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. In this question number 6 you have to find the value of x. Risk R I S K. So this is a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम है, प्रॉपर शेप नहीं बनेगी, ये लीजिए। दिस इज अ पैरेललोग्राम, रिस्क एक पैरेललोग्राम है। सो दिस इज 120, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। 60 कैसे आएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 120, तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया 60। आप इसको सपोज कर सकते हैं, मैंने सपोज किया है ए। आप लिखेंगे 120 प्लस ए इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम रिस्क। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 60 डिग्री। नाउ अब मैं इसको भूल जाती हूँ। नाउ क्लू CLUE ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सो एंगल इसको B सपोज कर लेती हूँ। सो B इक्वल टू 70 डिग्री, क्या लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्लू। तो ये देखिए बेटा, ये ट्राइंगल है, ये B है, ये X है। सो इसको आप O का नाम दे दीजिए। इन ट्राइंगल EOS एंगल A प्लस एंगल B प्लस X इज इक्वल टू 180। A आपके पास आया था बेटा 60 डिग्री, B आपके पास आया है 70, X की वैल्यू निकालनी है, तो इनका सम हो गया बेटा 130। 180 माइनस 130 करेंगे, सो योर आंसर इज़ 50 डिग्री। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 योर आंसर इज़ 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is opposite sides of parallelogram. Opposite angles of parallelogram are this and this. Find the measure of each angle of parallelogram. रीजन लिखेंगे बेटा opposite angles of parallelogram are equal होते हैं. So 3x minus 2 equal to 50 minus x. Variable same side, constant same side. 4x 50 plus 2 52, so x is equal to 52 by 4. so x की वैल्यू आ गई बेटा 13. अब x के पास आपके पास 13 आ गया, so फर्स्ट एंगल बनेगा 13. 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस 2 33. 39 माइनस 2 37. थर्ड एंगल इसके इक्वल ही होगा, 37 आ जाएगा. सेकंड और फोर्थ इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, सो 180 माइनस 37 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 143. सेम फोर्थ एंगल भी आ जाएगा 143 डिग्री.
Now question number 8. In question number 8, one angle is 2/3 of adjacent angle. Let one angle, हमने सपोज कर लिया वन एंगल x है, देन adjacent एंगल कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ x. दोनों का सम कितना होगा बेटा 180. एलसीएम आ गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. यहाँ पे 3 है, सो 5x बाई 3 इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 बाई 3 मल्टीप्लाई 5. 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 18 9 और 1 10. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 108. और इट मीन्स एंगल आ गया 108. एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 72. सो एंगल्स हो जाएंगे 108 72 108 एंड 72 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. वन एंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स. ये तो बहुत इजी है. पैरेललोग्राम की आप शेप बना ले. ये वाला एंगल 70, ये ए सपोज कर लिया, ये बी, ये प्लस सी. नाउ 70 इज इक्वल टू बी. रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. नाउ 70 प्लस ए इक्वल टू 120. क्या लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. सो ए इक्वल टू 110 and A equal to C equal to 110 because opposite angle of parallelogram are equal. Now question number 10, ratio of adjacent angles. Let adjacent angles are x and 2x. So x plus दोनों का सम कितना हो जाएगा 180. 3x is equal to 180. x की वैल्यू आ गई बेटा 60. So angles of parallelogram are 60, 120, 60 and 120. Now question number 11. ABCD is a parallelogram. Angle D is 135. Find the angle A and B. B कितना आ जाएगा बेटा 135. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और A आ जाएगा 45. रीजन क्या लिखेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू 180. A प्लस डी इक्वल टू 180. सो एंगल A आ जाएगा बेटा 180 माइनस 45, सॉरी 180 माइनस 135, 45 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन सेम एज क्वेश्चन नंबर 9. एंगल A 70 है, B C और D आपको निकालना है. आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. In a parallelogram, sum of opposite angle is 130. It means हमने सपोज कर लिया कि एंगल A प्लस एंगल C कितना है बेटा 130 डिग्री. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब दोनों इक्वल भी होते हैं. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो एंगल A की वैल्यू आ गई बेटा 65. दिस वन 65, दिस वन 65. B इक्वल टू D इक्वल टू 180 माइनस एंगल A. सो 180 माइनस 65 करेंगे तो इसका आ जाएगा बेटा 115 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल. सभी एंगल्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं. तो हमने सबको सपोज कर लिया A A A A. सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360. 4A इक्वल टू 360. तो A की वैल्यू आ गई 90 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. इज दिस इज अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम. क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? यस, पैरेललोग्राम बनेगा. व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ दिस? दिस इज द रेक्टेंगल. क्योंकि जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं बेटा 90 डिग्री के. ना क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एडजेसेंट साइड 4 और 3 हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो दिस वन
4, दिस वन 3, अपोजिट 4 है, ये 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 + 4, 4 + 3, 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर क्या आ गया पेरीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, पेरीमीटर गिवन है 150, one side is greater than by other side by 25 centimeter. Let one side x सेंटीमीटर सपोज कर लिया, सो अदर साइड क्या हो जाएगी बेटा, अदर साइड बोला है ग्रेटर देन अदर बाय 25, तो पेरीमीटर बनेगा 2 × x + 25 = 150, 2x + 25 2 से वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 75 - 25 50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो बेटा वन साइड आ गई 25, अदर हो जाएगी 50, सो वन साइड 25 सेंटीमीटर, अदर साइड डबल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25 प्लस करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है शॉर्टेस्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 4 × 4.8 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड longer side is half much again the longer side is half much again as shorter side, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड का हाफ और हम इसमें प्लस करेंगे तो वो बन जाएगी आपके पास लॉन्गर साइड, तो इसका हाफ हो जाएगा बेटा, इसका हाफ करेंगे तो आप हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2.4, सो लॉन्गर साइड आ जाएगी बेटा 4.8 + 4.8 का हाफ, सो 4.8 + 2.4 7.2, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर आ जाएगा बेटा 2 × 7.2 + 4.8, सम करेंगे 12 2 = 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एडजेसेंट एंगल गिवन है, सम ऑल एंगल्स निकालने हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा बेटा 360, तो आप लिखेंगे 3x - 4 + 3x + 10 = 180, रीज़न बता दिया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 ऑफ पैरेललोग्राम, 3x + 3x 6x 180 - 6 कैसे किया, 10 में से 4 गया 6, पॉजिटिव 6 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, सो दिस इज़ 172, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 172/6, 6 2 = 12, 4 आएगा बेटा, 6 2 = 12, 5 6 9 = 54, सो x की वैल्यू आ गई बेटा 54, तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा 3x + 10 कर लीजिए, तो 3x 3 × 29 + 10 27, 2 6 और 2 8 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 97, और सेकंड एंगल है 3x - 4 यानी कि 87 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83, सो 83 एंड 97 आर द एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फिगर बनानी पड़ेगी, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O, O पे बाइसेक्ट करते हैं, ABC कंप्लीट एंगल 30 डिग्री का है, BDC 10 का है, तो ये 20 आ जाएगा, 20 क्यों आएगा क्योंकि कंप्लीट B इक्वल हुआ कंप्लीट D के, अब ये 10 है, 10 + 20 कितना हो गया 30, CAB
सी ए बी, ये 70 है, ये 30 है, 70 और 30 कितना हो गया 100, तो ये कितना आ जाएगा 80। फाइंड डी ए बी, कौन कौन से निकालने हैं वो देखिए, डी ए बी। अब डी ए बी कितना आ जाएगा 150, 150 कैसे आया, अब एंगल बी 30 है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180, एंगल ए आ गया बेटा 180 माइनस 30 यानी कि 150, तो एंगल ए 150, ये 80 हो जाएगा और ये वाला आपके पास 70। देन ए डी सी 30 डिग्री निकाल चुके हैं, बी सी डी अगेन 150 आएगा, ए ओ डी, अब ये 80 ये 20 100, तो ए ओ डी भी कितना आ जाएगा बेटा 80। डी ओ सी लीनियर पेयर है तो ये कितना आ जाएगा 100, बी ओ सी 150, तो ये आ गया बेटा आपके पास 30। नहीं बेटा सॉरी, ये निकालना पड़ेगा, ये 80 ही आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन ए ओ बी 100 आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए सी डी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सी ए बी 70 डिग्री। ए डी बी 20 डिग्री। ए सी बी 80 डिग्री निकाल रखा है। डी बी सी ये 20 डिग्री। 20 कैसे आएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। देन डी बी सी हो गया। डी बी ए ये 10 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। So this is enough for today. In next video we discuss remaining questions. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.